another operation on array, that is inserting an element into an array. Last class we discussed about traversing. Now we'll see inserting into an array. Inserting an element into an array means already we have an array. For example, this is one array we already have. Now we want to insert an element. To insert the element, we should know the location where we want to insert. We can insert at the beginning also, we can insert in the center also, or we can insert at last, at the end also. हम शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, या बीच में भी ऐड कर सकते हैं, या लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं. That is depending on the requirement, we are inserting an element. When we are inserting element, what happen, जिस पोजीशन में हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, उस एलिमेंट से लेकर, उस पोजीशन से लेकर उसके आगे तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे हम शिफ्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, हमें मैं इंडेक्स वैल्यू लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4. दिस इज द indexes. Now I want to insert the element at the position 3. इस पोजीशन में वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यूज को हम आगे शिफ्ट करना पड़ेगा. पहले 3 को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और 4 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट वी शुड अंडरस्टैंड इन इंसर्टिंग इन एन एलिमेंट इनटू एन अरे. समझ में आ रहा है? इससे पहले वी शुड नो लेंथ ऑफ द अरे. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अरे? Depending on that, how many elements we are inserted into a particular array. Now depending on that we are thinking. For example, this is one array A of 5. It is one array. It already contains 5 values. It contains 5 values. If I want to insert new element at the end, means it will show error because the length of the array is 5 only. Is a error, we can display error, means the array is full, out of bound. Upper bound is full, till upper bound it is full. Now we can't insert the value into that. If array length is, for example, A of 6 is the length array, 5 values we are inserted, that means here one bound, one index is empty here. Now we can insert the value. Clear? सबसे पहले हमें चाहिए, जब भी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट वी शुड नो द लेंथ ऑफ द अरे and how many elements in that array. That should be same, that should not be greater than this, that should be less than the length only, then only we can insert. Second, we should know the position where we are inserting the element, किस पोजीशन में एंटर करना चाह रहे हैं. थर्ड, क्या करेंगे, हम जिस पोजीशन में एंटर करना चाह रहे हैं उससे आगे के सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना होगा आगे के लिए. ये उसके बाद हम इंसर्टिंग द एलिमेंट at a particular element. Clear? Now we'll see one example, then you will understand properly. See, here we have one array. For example, array A of size is 7. 7 is the length of the array. Now the array elements contains, for example, it contains only 5 values or 6 values. 5 values it contains. Array may be now this is array. When we create the array, at the time this is the memory allocated for that. The values may be 10, 20, 30, 40, 50. These are the values in this array. Now 2 index are empty, we are not inserted yet, this only. Now I want to insert one value at the position of here. इस पोजीशन में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ. व्हाट इज द बाउंड ऑफ दिस? 0 1 2 3 4 5 6. तो हम थर्ड पोजीशन में ये ऑफ 3 में हम एक वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल इट इज 60 हमें यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए यहाँ से लेकर ये वैल्यू उसको आगे शिफ्ट करना होगा, ये वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, मतलब ये वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। फर्स्ट इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट स्टेप इज, आई एम राइटिंग वंस अगेन दीस आर 1 2 3 4 5 10 20 30 40 ये अरे है। Now I want to insert at this position. Then first I should shift 50 to the next position. 50 यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं हमें, शिफ्ट ये पोजीशन 6 में शिफ्ट, सॉरी 5 में शिफ्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 5 में शिफ्ट कर। सेकेंड पोजीशन, अब इसे यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, हमें इंसर्ट करना है, ये ऑफ 3 पे 60 को इंसर्ट करना है। For that we are shifting 50 at the position of 5. Now I want to shift 40 at that position. Now we are shifted 40 to the next position. Now this position is empty. Now we can insert 60 here. 60 हम यहाँ पे insert कर रहे हैं। ये है how we are inserting the element. Clear? First step, we should shift the values from the particular position to the next position, shifted towards the upper bound. शिफ्ट करना होगा, उसके बाद वैल्यू इंसर्ट करना होगा। जब तक हम वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। We will see algorithm. What is algorithm? ये हमें करने के लिए हमें किस तरह से करना है, एक algorithm लिखता हूँ मैं, या instead of that we can directly write one program. First we will see algorithm. The algorithm may be name I am giving insert array name. What is the length of the array? What are the items in that? And this is one function we are calling. We are writing one algorithm here. A is the array. N is the number of elements in the array. Item which we should inserting, कौन सा हमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो उसे आइटम नाम दिए हैं। पोजीशन इज द कौन से पोजीशन में हम इंसर्ट करना चाहते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए 10 20 30 40, ये अरे है 40 50 फॉर एग्जांपल अरे। नाउ आई वांट टू इंसर्ट 0 1 2 3 4 एट पोजीशन 2। इस पोजीशन में मुझे इंसर्ट करना है 90 को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, ये वैल्यूज को आगे शिफ्ट करना है, आगे शिफ्ट करना है। अब अज्यूम करते हैं अरे लेंथ इज ग्रेटर देन द इंसर्टेड वैल्यूज ओनली। अज्यूम कर लीजिए, अब हम ऐसे करें, इंसर्ट करें तो क्या कर रहे हैं, हमें 50 को यहाँ पे चेंज करना है, 40 इस पोजीशन में, 30 इस पोजीशन में आएगा, फिर हम यहाँ पे ये इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ये पोजीशन से स्टार्ट करके ये पोजीशन में शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये का इस वैल्यू का पोजीशन कितना है, ये ऑफ 4, ये ऑफ 4 इज इक्वल टू 50 है। तो हम इसे क्या करना है, ये ऑफ 5 बनाना है, ये ऑफ 5 इज इक्वल टू 50। 5 में हमें 50 को शिफ्ट करना है फर्स्ट, फिर उसके बाद ये ऑफ 4 में हमें शिफ्ट करना है 40 को। नेक्स्ट ये ऑफ 3 में हमें शिफ्ट करना है 30। उसके बाद ये ऑफ 2 में हमें फाइनली हमें 90 को इंसर्ट करना है, 90। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 4 था उसे बढ़ा के 5 कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। 4 था उसे बढ़ा के 5 करके वैल्यू वहां पे चेंज करना है। फिर जो 3 था उसे बढ़ाकर 4 करके, इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है। पहले ये वैल्यू था मतलब ये 4 एन वैल्यू हमें पता है, अपर बाउंड एन वैल्यू हमें पता है,
तो हमें ये इंक्रीज करके वो वैल्यू जो 4 में थी वो वैल्यू यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें। इसे हम कैसे लिखेंगे, स्टेप 1 फॉर लूप I is one variable I'm taking, I is equal to फॉर लूप। ये कहां तक आना है, देखिए यहां से लेके नीचे तक जाना पड़ेगा हमें, अपर बाउंड चेंज होते होते लोअर पोजीशन तक हमें जाना है, शिफ्ट करना है। तो ये आई वैल्यू कितना होना चाहिए, फर्स्ट n-1 सॉरी n-1 से डाउन जाना है, डाउन मतलब कम करते जाना है, कहां तक, पोजीशन तक, पोजीशन तक जो पोजीशन दिए वहां तक जाना है हमें वैल्यू शिफ्ट करने के लिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, फर्स्ट ये ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू ये ऑफ i। व्हाट इज दिस मीन्स, फर्स्ट i इज इक्वल टू हम ले रहे हैं यहाँ पे फॉर लूप में, यहाँ पे लिख रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, फॉर i इज इक्वल टू n-1 n-1। अब कब तक रहेगा, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोजीशन i प्लस प्लस। फॉर आप यहाँ पे समझिए ये वैल्यूज कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। i का वैल्यू होगा यहाँ पे फर्स्ट 5-1, i का वैल्यू होगा 5-1, मतलब i इज इक्वल टू 4। i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोजीशन, हमें किस पोजीशन में, पोजीशन 2 में करना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा i प्लस प्लस। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए ये कैसे काम करेगा। तो अब ये फॉर लूप हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, i इज इक्वल टू 4, i इज लेस देन और इक्वल टू 2, यस इट इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, तो इट विल एग्जीक्यूट। देन अरे ऑफ i की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू ये ऑफ 4, मतलब ये ऑफ 4 प्लस 1 मतलब यहाँ पे एक नया ऐड हो जाएगा इस पोजीशन में, 4 प्लस 1 5 में ये ऑफ y, i कितना है, i वैल्यू इज 4, ये ऑफ 4 कितना था 50, ये 50 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। न्यू अरे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, ये ऑफ 5 इज इक्वल टू ये ऑफ i, ये ऑफ 4, ये ऑफ 4 कितना है 50, ये 50 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगेन इट विल कम फॉर लूप, i विल बी सॉरी यहाँ पे डाउन कर रहा है ना, तो ये प्लस प्लस नहीं, i माइनस माइनस होगा, i माइनस माइनस, तो i की वैल्यू माइनस होगा, मतलब i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यस कंडीशन ट्रू। देन अगेन यहाँ पे ये आएगा, ये अब i इज इक्वल ये ऑफ, ये हो गया। सेकेंड राउंड में देखते हैं, सेकेंड टाइम व्हाट हैपन, i इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यस कंडीशन इज ट्रू। देन व्हाट हैपन, ये ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू ये ऑफ i, इसका मतलब ये ऑफ i कितना है 3 प्लस 1 इज 4, ये ऑफ 3, ये ऑफ 3 कितना है यहाँ पे 40, ये वैल्यू ऐड होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये एम्प्टी होगा। अगेन इट विल इंक्रीज फॉर सेकेंड टाइम आल्सो, 30 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। जब ये इस पोजीशन में जब ये एग्जीक्यूट होगा i की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो इट इज कंडीशन विल बी फॉल्स, इट विल कम आउट ऑफ द फॉर लूप। हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करके वैल्यूज को शिफ्ट किए हैं। क्लियर। इफ यू गेट कंफ्यूज, अगर कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं, और 2-3 हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरह से काम कर रहा। क्लियर। यहां तक हमने अरे को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इंसर्ट करना है। स्टेप 2 क्या होगा, अब ये ऑफ पोजीशन में
हमें आइटम को इंसर्ट करना है, इस आइटम को हम इंसर्ट कर रहे हैं। ये सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप 3 क्या होगा, n की वैल्यू हमें ऑटोमेटिक बढ़ाना होगा। और n की वैल्यू जो पहले थी उससे एक वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1। n वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 थी, अब 6 हो जाएगी। ये है स्टेप 3। फाइनली स्टेप 4 इज एग्जिट। स्टेप 4 इज एग्जिट। ये है एल्गोरिथम इंसर्टिंग एन एलिमेंट। यहाँ फॉर लूप में क्या कर रहे हैं हम, वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग द एलिमेंट्स, अरे एलिमेंट्स टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में वी आर इंसर्टिंग द वैल्यू इनटू द पोजीशन हियर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये अरे के साइज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि न्यू वैल्यू इंसर्ट करने के बाद अरे का साइज बढ़ जाएगा। साइज मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, तो वो एक बढ़ गया तो एक नंबर बढ़ा के हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। दिस इज अबाउट हाउ वी आर इंसर्टिंग द एलिमेंट्स इनटू एन अरे। वन प्रोग्राम आई विल एक्सप्लेन यू, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कैसे काम करेगा। अभी हम बहुत सारे ऑपरेशंस जब परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह से ये शिफ्ट हो रहा है, ये अरे रीड कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? दिस इज टुडे वी डिस्कस अबाउट operations. In that array operations we discussed two operation, traversing and inserting. In next class we will see another operation, deleting and searching. We will see in next class. If you have any doubt in this, you can ask me.